દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ગુજરાત સ્ટેટ ઇન્ટર યુનિવર્સિટી સ્ટાફ ટુર્નામેન્ટ 2023-24નો શુભારંભ કરાયો. આ ટુર્નામેન્ટમાં ગુજરાતની 16 યુનિવર્સિટીના 365 પ્રતિસ્પર્ધીઓએ વિવિધ રમતોમાં ભાગ લીધો. સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ગુજરાતની વિવિધ યુનિવર્સિટીઓમાં ફરજ બજાવતા અધિકારી કર્મચારીઓ માટે દાંતીવાડા યુનિવર્સિટી અને ગુજરાત રાજ્ય યુનિવર્સિટી કર્મચારી રમતગમત અને સાંસ્કૃતિક મંડળના સંયુક્ત ઉપક્રમે ગુજરાત સ્ટેટ ઇન્ટર યુનિવર્સિટી સ્ટાફ સ્પોર્ટ્સ ટુર્નામેન્ટ 2023-24નો મેનેજર ધ્યાનચંદ્ર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ ટુર્નામેન્ટનો પ્રારંભ દાંતીવાડા બીએસએફના તેજસ્વી 123 બટાલિયનના કમાન્ડન્ટ ગુરુદિન સિંઘ દ્વારા કરવામાં આવ્યો. તારીખ 27 થી 29 જાન્યુઆરી સુધી યોજાનાર ત્રિદિવસીય ટુર્નામેન્ટમાં ગુજરાતના રાજ્યની 16 જેટલી યુનિવર્સિટીઓના 365 જેટલા સ્ટાફના પ્રતિસ્પર્ધીઓએ ભાગ લીધો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ક્રિકેટ, બેડમિન્ટન, ટેબલ ટેનિસ, ચેસ તેમજ પ્રથમ વખત વોલીબોલ એમ કુલ 5 રમતોની સ્પર્ધા થશે. ગુજરાત સ્ટેટ ઇન્ટર યુનિવર્સિટી સ્ટાફ ટુર્નામેન્ટના શુભારંભ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મુખ્ય અતિથિ કમાન્ડન્ટ ગુરિન્દર સિંઘે જણાવ્યું કે સ્વસ્થ શરીરમાં સ્વસ્થ મન વસે છે, તેથી જીવનમાં રમતગમતનું ખૂબ જ મહત્વ છે. રમતગમત એકબીજાથી નજીક લાવે છે. આ સ્પર્ધા નિયમિત રીતે યુનિવર્સિટીના સ્ટાફ માટે યોજાય છે, એ ખૂબ જ આનંદનો વિષય છે. જો વિદ્યાર્થીઓને ભણાવનાર શિક્ષકો સ્વસ્થ હશે તો વિદ્યાર્થીઓ પણ સ્વસ્થ અને પ્રેરણાથી ભરેલા હશે. સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર ડોક્ટર RM ચૌહાણે જણાવ્યું કે દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીને ચોથી વખત સ્ટેટ ઇન્ટર યુનિવર્સિટી સ્પોર્ટ ટુર્નામેન્ટ આયોજિત કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે, જે અમારા માટે ગૌરવની બાબત છે. તેઓએ કહ્યું હતું કે રમતના મેદાનમાં જેવું જોવા મળે છે કે જીતવાવાળી ટીમ હારવાવાળી ટીમને ગળે લગાવી લે છે, જે આપણને ખેલદિલી શીખવે છે. આ ટુર્નામેન્ટના સફળ આયોજન માટે જહેમત ઉઠાવનાર દાંતીવાડા યુનિવર્સિટીના તમામ સ્ટાફને તેઓએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમજ ગુજરાતની વિવિધ યુનિવર્સિટીઓમાંથી દૂર દૂરથી આવેલા પ્રતિસ્પર્ધીઓને આવકાર્યા હતા. 3 દિવસ ચાલનાર આ ટુર્નામેન્ટમાં વિવિધ રમતમાં વિજય થનાર અને રનરઅપ થનાર વિજેતાઓને રોલિંગ ટ્રોફી આપવામાં આવશે તથા અન્ય વિજેતાઓને શિલ્ડ એનાયત કરવામાં આવશે. દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે આયોજિત ગુજરાત સ્ટેટ ઇન્ટર યુનિવર્સિટી સ્ટાફ ટુર્નામેન્ટ 2023-24ના શુભારંભ પ્રસંગે દાંતીવાડા બીએસએફના સેકન્ડ ઇન કમાન્ડ LB રામ યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર PD પટેલ, SBI રિજિયોનલ મેનેજર સંજય અબાથા, ગુજરાત રાજ્ય યુનિવર્સિટી કર્મચારી રમતગમત અને સાંસ્કૃતિક મંડળના પ્રમુખ ડોક્ટર VR પટેલ તેમજ સહમંત્રી નીરવ રાવલ, યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી કલ્યાણ વિભાગના નિયામક ડોક્ટર KP ઠાકર, યુનિવર્સિટી સ્પોર્ટ્સ ક્લબના પ્રમુખ ડોક્ટર SR વ્યાસ, વિવિધ યુનિવર્સિટીના ડાયરેક્ટર્સ, ડીન, વિભાગના વડાઓ, રમતોના કોચ તેમજ પ્રતિસ્પર્ધીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डिग्नेटरीज जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं VC सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट उन्होंने मेरे को बुलाया, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. उसके बाद जो हमने कल अपना 75वां रिपब्लिक डे मनाया, मैं उसकी बधाई BSF परिवार की तरफ से सबको देता हूँ. जय. जैसे कि मेरे से पहले बताया सर ने कि गेम्स जो है ये जो कहते हैं कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड. अगर आपकी तंदुरुस्त बॉडी है तो आपका जो है दिमाग भी तंदुरुस्त है. तो ये एक जो है बहुत ही अच्छा है. जैसे मेरे से पहले सर ने बताया है कि ये नियमित तौर पे, गुजराती जितनी मेरे को समझ आई मैं उतनी पकड़ पाया कि नियमित तौर के ऊपर ये संघ बनने के बाद ये नियमित तौर पे ये जो पार्टिसिपेशंस हैं ये हो रही हैं. जस्ट फॉर कोरोना के टाइम भी नहीं हो पाए, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है वो खुद ब खुद फिट हो जाएंगे और मोटिवेटेड होंगे. तो मैं आप सबको जो इस गेम्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करने आए हैं और इधर जो कोचेस बैठे हैं और जो अंपायर्स बैठे हैं, मैं उन सबका जो है बहुत जो है मतलब हैप्पी फील कर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ कि जो ये एक सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने चलाया है कि जो ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स को भी पार्टिसिपेट करने का, अपनी जो कला दिखाने का यहाँ पे जो एक प्लेटफॉर्म दिया है. तो आपको सबको विदित है कि देयर इज़ नो टाइम टू स्टार्ट फिजिकल फिटनेस. टाइम कोई नहीं है, आपके माइंड के अंदर सिर्फ वो होना चाहिए. बहुत आजकल तो 50+ वालों के भी गेम्स हो रहे हैं. कई संस्था उन गेम्स को करवा रही है और नई संस्था करवा रही है उस गेम्स को. हाँ जी. तो उसमें लोग मेडल्स ले रहे हैं और ये जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी जिनका जो रेगुलर अपना जो इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल या मेडल्स नहीं जीत पाए, तो एक इसके अंदर भी अपन जीत के अपने मन को खुश कर सकते हैं.
और साथ वो वर्ल्ड के सबसे बड़े जो है मैराथन ओल्डेस्ट मैराथन रनर थे। और दूसरे लेडी भी हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका भी वो भी बहुत ही जो है उनका मैराथन रनर है। तो मैं चाहूँगा, जैसे सर ने बोला है कि ये गेम्स तो एक बहाना है, दिल से दिल को मिलाना है, तो ये जो है हमें जो है आपके चेहरे से जो खुशी और जो पार्टिसिपेशन की जो भावना नज़र आ रही है, मैं उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। और सबको, और ख़ास करके कुशीनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी सर को और उनकी टीम को ये बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर ग्राउंड मेंटेन किया है, इतनी फैसिलिटी आपको दी है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अगेन मैं वीसी सर का और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। को मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पर हमारी मतलब की बॉर्डर है, और उस बॉर्डर के ऊपर कल 26वीं जनवरी का कार्यक्रम था, गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम था, उसमें सर मतलब पूरे दिन कार्यक्रम में रहे। सुबह पहले वहाँ से निकल के और डायरेक्ट यहाँ पहुँचे हैं, अभी मतलब कि बीएसएफ के अंदर नहीं गए हैं। तो इस तरह से मतलब कि जो उनका डेडिकेशन है, इस यूनिवर्सिटी के साथ जो लगाव है, इस यूनिवर्सिटी के लिए जो प्रेम है, वो वास्तव में सराहनीय है। उनके साथ जो मतलब कि 2I से राम साहब पधारे, BL राम साहब, इनका भी मतलब कि काफ़ी कुछ लाइजनिंग रहता है, कोई भी छोटी मोटी बात हो। मैं अभी आपसे कहना चाहूँगा, थोड़े दिन की पहले की बात है, 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी, ये 6 जनवरी से 8 जनवरी को एक मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चों को बॉर्डर पे मतलब कि क्या कार्रवाई होती है, बॉर्डर पे किस तरह से रहा जाता है, वो सिखाना है। तो जो पहला ही कार्यक्रम किया, पहली ही बैच जो आई, उसमें जो 20 बच्चे थे वो हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटी के थे, और उन यूनिवर्सिटी के बच्चों को बॉर्डर पे ले जाके और बॉर्डर में जितने भी साधन हैं, जितने भी हथियार हैं, उन हथियारों की तालीम देना, उनको बॉर्डर पे मतलब कि सिक्योरिटी जो मतलब कि हमेशा एक याद रखिए कि बॉर्डर के ऊपर 24 घंटे आप लोग खड़े रहते हैं, और जो आप लोग वहाँ खड़े रहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आराम से, प्रेम से और इस तरह से आनंद से मतलब कि हर खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं। तो वहाँ जिस तरह से 24 घंटे खड़े, उन बच्चों को भी उन्होंने यही सिखाया। तो ये हमारे यूनिवर्सिटी के लिए आपका प्रेम है, आपका मतलब कि जो सहयोग है, तो इसलिए। और आज मतलब कि आप सभी हैं, और चेस के अंदर 13 टीम जो हिस्सा ले रही हैं, उन सभी टीमों को मैं यहाँ से खूब खूब बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहली बात ये मैं कहूँगा कि वॉलीबॉल की शुरुआत यहाँ से हो रही है, इस यूनिवर्सिटी से मतलब वॉलीबॉल स्पोर्ट्स जो है वो शुरू हो रहा है। और उसके लिए जो मतलब कि हमारे ठाकर साहब ने ये मेहनत की है, ठाकर साहब ने जो ये मैदान बनाया है, इस मैदान का मतलब कि आप लोगों के हाथ से ही मतलब इनॉग्रेशन भी हो रहा है। तो इस तरह से इस मैदान के ऊपर ऑफिशियल टूर्नामेंट, हमारे बच्चे खेल रहे हैं रोज, लेकिन जो ऑफिशियल टूर्नामेंट शुरू होगी वो आज शुरू होगी। तो इसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ, और सबको बधाई भी देता हूँ कि आपको इस मैदान के ऊपर आने में पहली बार, ये जो आप आज लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये आपका मतलब कि चौथी बार यहाँ पर इन टीमों का मतलब आना है। इस मंडल का जो मतलब कि आयोजन है, सबसे पहले 2001 के अंदर यहाँ पर आयोजन किया गया था, और उस समय भी मैं मतलब कि 2001 में किया गया था। 2001 के बाद मतलब कि 2012 में हुआ, 2012 के बाद मतलब 2020 में हुआ, और 2020 के बाद आज मतलब फिर से 2023 में हो रहा है। तो जहाँ पर जो मतलब कि आप चौथी बार आ रहे हैं, तो चौथी बार का ये जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं मंडल के जो होदेदार हैं उन सभी का सही हृदय से मतलब धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यहाँ पर खूब मतलब कि आराम से, जिसको हम कहें तो कंफर्टेबली रहें, कंफर्टेबली खेलें, और जिस भी सुविधा की जरूरत हो तो हमारे मतलब कि जो डायरेक्टर हैं कमलेश भाई, इज़ गुड इनफ, क्योंकि आप तो सब मतलब कि स्टाफगण हैं, मतलब बच्चों के साथ ही रहते हैं, बच्चों के साथ भी मतलब कि आप लोगों को बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है वो करते हैं, जबकि ये लोग तो डायरेक्ट बच्चों को खिलाते हैं। और बच्चों भी मतलब जब यहाँ आते हैं, चाहे कितनी ही यूनिवर्सिटी के बच्चे आएँ, वो बच्चे भी मतलब खुश होकर जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों के जो सजेशन हैं, वो सजेशन भी आप देना कि इनमें हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में जो भी कुछ अच्छा हो, वो अच्छा आप यहाँ पर भी देने की कोशिश करें, तो उसके अनुसार हम लोग हमारे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, और उसी को मतलब कि मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर से मैं सभी को यहाँ पर जो पधारे हुए हैं, उन सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूँ, उन सभी को बधाई देता हूँ।
वो टीम उसी समय हारने वाली टीम को गले लगाती है। शायद वो यहाँ मैदानों में ही देखने को मिलता है। और इसीलिए जो डॉक्टर वी.आर. पटेल ने कहा था कि हम लोग एक दूसरे के दिल से मतलब कि मिलने का ये बहाना है, वास्तव में यही है कि दिल को मिलाना है, दिल को मतलब कि लगाना है। और ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए आप लोग इतनी उम्र तक खेल रहे हैं, वही एक बधाई के लिए, धन्यवाद के लिए पात्र हैं। क्योंकि आदमी धीरे धीरे जैसे ही मतलब कि उम्र की तरफ ढलता है तो सोचने लग जाता है कि भाई क्या है, लेकिन आदरणीय कमांडेंट साहब ने जैसे कहा तो उसी तरह से यदि मान लो कि आपका तन मजबूत है तो मन मजबूत रहता ही है। सुबह पहले उठते ही अगर मान लो कि सर दर्द की आपको शिकायत रहती है तो पूरे दिन आप क्या करोगे, लेकिन अगर उठते समय हम प्रफुल्लित हैं तो पूरे दिन हम उसी तरह से प्रफुल्लितता से काम कर सकते हैं।